हेलो बच्चों, for your NEET exam, approx 3 months are remaining. I am Chandana Sengupta. Welcome to Bioratna. In today's video, I am going to give you some tips which will definitely help you to achieve your goal. So let us start. How to take sure short steps towards cracking NEET 2022. The first thing, you must have done this. If not, then do it first. What is it? On a piece of paper, note down, write what? I am going to top NEET 2022, or I will be within the rank 100, 200, 300, 400, 500. Stop. Have faith and then take all these steps and prepare. At the end, you can write, I am going to clear NEET 2022. This is the last. And then this video is going to help you to improve and move to the higher slot. Okay, so let us start. 10. Select a time schedule which is best suited to you. Don't look at others. Everyone has a biological clock during which there is a time period in which the person is very active. जो भी आप पढ़ोगे उस समय आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. Select that time. Select कर लिया कि आप अर्ली राइजर हो, जल्दी उठो. आप लेट राइजर हो, लेट उठो. फाइन. नेक्स्ट, आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किसी कोचिंग में नहीं जा रहे हो, योर स्कूल्स आर ओवर, you can very easily take out 12 hours time from one day. Okay, how you got up at 5, at 6 to 10 your one slot of 4 hours, then 2 hours break, 12 to 4 another next short slot of 4 hours, then next last slot again 6 to 10. In between there are 2 hours break, and at 10 o'clock you go to sleep. Then 10 to 5 you are having a nice 7 hours sleep. That means getting 7 hours sleep, 12 hours study time and 2 hours breaks in between, which you can modify according to your own, I won't say choice, own what suits you best. Means by that modification you must feel fresh. Accordingly you increase that 12 hours. If it doesn't suit you, well and good, 12 पे अटके रहो. 12 घंटे लेकिन अच्छे से पढ़ना है. Then अगर वो दूसरे बच्चे हैं जो लेट उठते हैं, suppose you are getting up at 9 o'clock. No, you get up at 8 o'clock and you start your studies at 9 o'clock. Then your slot is 9 to 1, 4 hours. Then 1 to 3 gap. 1 to 3 means 2 hours gap. Then 3 to 7 again 4 hours. Then at the night 9 to 1 again 4 hours. In totality full 12 hours. Now you go to sleep. At 1 o'clock, you get up at 8. Nice 7 hours sleep. You still have 1 hour in your hand when you are going to start your studies. Which of course the time duration you can modify. Okay. That means increasing this time of 12 hours is easy. Or you can stick to this 12 hours. But if you are going to some coaching institute, then restrict that time to 7 to 8 hours. 4 घंटे कम. ठीक है? This is one thing. अब आपने अपना टाइम शेड्यूल देख लिया, टाइम देख लिया कहाँ किस समय आप एक्टिव हो. अब क्या आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हो? नहीं. No. You can't do that. You have to do 2 things a day before.
Without that, your day won't be productive. What are those two things? First, select the subject which you are going to study the next day. फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एक उधेड़ बुन में मत रहिए. चलिए सोच लीजिए कि हाँ आपको सारी चीजें पढ़नी है, यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, सारी पढ़नी है तो पढ़नी है ना. जस्ट सिलेक्ट वन. सिलेक्ट कर लिया. अब लीजिए अपनी बायो की बुक हाथ में. नाउ अगेन यू स्टार्ट. ये चैप्टर, वो चैप्टर, ये चैप्टर, वो चैप्टर. स्टॉप डूइंग दैट. सिलेक्ट वन चैप्टर. यू विल स्टडी ऑल ना. Now put a bookmarker over there. Keep it on your study table. The book will be waiting for you in the morning. Just पेज खोलिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए. This is one thing. Equally important is another thing. This is whatever you have studied before going to bed. जो भी पढ़ा है आपने, वो मटेरियल लेके आप अपनी पिलो साइड में रख लेते हो. रख के फिर आप वहां पर भी बुक मार्क लगा देते हो जो पढ़ा था. एंड देन यू गो टू बेड. सो जाते हो अच्छे से. और सवेरे जब आप उठते हो, एट दैट टाइम यू विल फाइंड देयर इज अ टाइम पीरियड ऑफ अबाउट 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स, वैरीज पर्सन टू पर्सन, जिस समय आप बहुत नींद की खुमारी में होते हो. अगर आप उठ भी जाते हो, देन दैट टाइम इज नॉट प्रोडक्टिव. आप वही नींद की खुमारी में रहते हो, ऊँघते रहते हो. और अगर आप सोए रहते हो, दैट इज इक्वली बैड. उसमें आप सोचते रहते हो कि अरे मुझे उठना था, मैं नहीं उठा. अरे मुझे उठना था, मैं नहीं उठा. दैट गिल्ट किल्स यू. डू वन थिंग. आपकी आंखें बंद है, आपके पास आपकी बुक बंद है. उस बुक को आपको छूना ही नहीं है शुरू में. नाउ यू स्टार्ट रिकॉलिंग ऑल द थिंग्स व्हाटएवर यू स्टडीड वन डे बिफोर. देन जहां आप अटके, तुरंत आपने बुक खोली, तुरंत वो पॉइंट देखा, बुक बंद, आपकी आंखें बंद, आप फिर से पढ़ रहे हो. वो बुक आपके पास है, जहां अटके आपने तुरंत देखा. अगर वहां नहीं रहती, आप सोचते कि हाँ उठने के बाद मैं देख लूंगा. ये बाद वाला काम कभी नहीं होता है. तो आपका पूरा काम तो हो गया. एट द सेम टाइम ये जो रिवीजन है, इट विल बी लाइक अ जेरोक्स कॉपी. इट इज एज इफ वो एनसीईआरटी के पेजेस ऐसे छप गए हैं आपके ब्रेन में. एंड वन मोर वंडरफुल थिंग इज दैट आपको एक्स्ट्रा कोई टाइम रिवीजन के लिए नहीं जरूरत पड़ी. एंड अनदर थिंग इज दैट एज अ बोनस कि आप इतने खुश हो सवेरे, सेटिस्फाइड हो कि ये समय भी मैंने इतने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया. और वो खत्म होते होते आप एकदम अच्छे से जाग जाते हो. देन गेट अप, फिर आप पढ़ने बैठते हो. अब आपके पढ़ने की बारी है. That is equally important. All the points are very important, students. Pay proper attention to each and every one of it. करो, उसमें से एक भी मत छोड़ो. जैसे जैसे पॉइंट्स आते हैं, आज ही पहला किया, फिर देखो वीडियो में दूसरा मैंने किया, दूसरा किया, तभी तीसरे में जाओगे. अदरवाइज आप एक दिन वेस्ट करने वाले हो. डोंट डू दैट. डोंट वेस्ट अ सिंगल सेकेंड. नाउ ये जो आप पढ़ने वाले हो, इसमें मैं ये जो पढ़ने का तरीका बताऊंगी. इन दैट आई विल बी टेलिंग यू कि कैसे आप 1 घंटे में 3 घंटे की पढ़ाई कर लेते हो. इसका मतलब आपके नीट के एग्जाम के लिए 3 महीने नहीं, 9 महीने हैं. इट वर्क्स लाइक एनीथिंग. पहले ही दिन में, पहले ही घंटे में, पहले 1 घंटे 10 मिनट में you will find that whatever you have studied in 3 hours till date, that you will complete in that 1 hour 10 minutes. पहले ही घंटे में, पहले ही 1 घंटे 10 मिनट में आपको खुद से पता चल जाएगा. So just think how much productive that will be. ये लेकिन I will be making a different video for it. I am giving the link in the description box. Please go through it because otherwise this chapter will be very long. अब क्या? अब एक महामंत्र. What is that? Yes. This is your NCERT. You know how important it is. Pay proper respect to each word,
each diagram of NCERT, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ डालिए, उसको याद कर लीजिए। जेरोक्स आपके दिमाग में बनते जा रहा है, दिन के समय भी और सवेरे अर्ली मॉर्निंग के रिवीजन में। आई एम टेलिंग यू, इट विल बी देयर इन एज अ जेरोक्स। जब आपको जो भी रिकॉल करना हो आपको तुरंत मिल जाएगा। बट हैव दैट फेथ इन यू। This thing is very important, most important. That is your own belief in yourself, your passion, and accordingly your attitude. Have faith in you that I will complete it, and it can be completed. मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत आराम से हो जाता है, लेकिन अच्छे से हो जाता है। ओके, एंड whenever and whatever, not even topic, whichever line you are reading, सोचो यही लाइन आने वाली है, इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। जब आप ऐसा सोच के पढ़ोगे तो उसको अच्छे से पढ़ोगे। जब आप एक चीज पढ़ते हो और सोचते हो कि नहीं 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 ये तो नहीं आने वाला, हो सकता है वो दूसरा मैंने अभी पढ़ना बाकी है वो आने वाला है, तो सारी चीजें आप जब जिसमें रहोगे तब उसमें नहीं रहोगे। डोंट डू दैट। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो, हर लाइन में, हर डायग्राम में क्रिटिकली गो ऑन एनालाइजिंग इट, रीड इट एंड थिंक कि हाँ इसी में से वो आने वाला है। प्रिपेयर लाइक दैट, सी योर रिजल्ट। फाइन, नाउ व्हाट, कैसे पढ़ा एनसीईआरटी को? सारे कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर किए। विदाउट क्लियरिंग द कंसेप्ट आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से एकदम वर्ड टू वर्ड भी आपने याद कर लिया, कोई फायदा नहीं होने वाला है। यू आर नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इफ योर कंसेप्ट इज नॉट क्लियर, you won't be able to answer. So clear the concepts. You must have the habit of asking, ask. जब भी आपको डाउट हो तुरंत आपको पूछ लेना है, तुरंत आपको पूछ लेना है। और आपको अगर कोई भी कंसेप्ट्स में, बायोलॉजी में कोई भी डाउट है, जैसे द चैप्टर टॉपिक्स लाइक कीमोस्मेटिक हाइपोथेसिस और ट्रांसलेशन और प्लॉइडी, देन राइट इन द कमेंट बॉक्स. I will prepare that video first. Okay. Now, what next? इस तरह से आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली, तैयारी आपकी हो गई है। Equally important is attempt MCQs, practice the MCQs, PYQs and the test series. Otherwise, it is like preparing for a battle and never visiting a battlefield कि वहां जाके क्या होता है। आप पढ़ते जाते हो और एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करते हो, टेस्ट सीरीज देते हो। व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड? व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड, यू टेल मी। वही एनसीईआरटी है, आपने अच्छे से पढ़ लिया है, आपने समय नहीं बर्बाद किया है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर है, उसके बाद आपने एमसीक्यूज कर लिए, पीवाईक्यूज कर लिए, आपने टेस्ट सीरीज रेगुलर देते जा रहे हो। व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड? आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, लेकिन कुछ टिप्स, कुछ गाइडलाइंस हमारी तरफ से आपको होनी जरूरी होती है कि जो आपको हेल्प कर जाए। तो ऐसे ही एक और गाइडलाइन है, दिस वन, द लास्ट वन। व्हाट इज दैट? This is when you are at exam hall. When you are now at exam hall, don't attempt that question which you are not sure about. तुक्का मत लगाइए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। This is one thing. Another important thing is that आप कोई एक क्वेश्चन पढ़ते हो, पढ़ने के बाद तुरंत हैप्पी हो जाते हो, अरे ये मुझे पता है, ये ऐसा वाला क्वेश्चन है। आप समझ नहीं पाते हो क्यों, कहीं पे ट्विस्टेड है। देयर इज वेरी सिंपल ट्रिक टू अवॉइड दिस ब्लंडर। कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूरा सेंटेंस फास्ट मत पढ़िए, वर्ड बाय वर्ड ब्रेक कर करके पढ़िए। इट विल नेवर गो रॉन्ग। दैट्स इट। फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स, सी द वीडियो, द डिस्क्रिप्शन you will get in the description box, that how to cover 3 hours of study in 1 hour. I wish you all the best
for your white coat and for your stethoscope. If you have liked the video, then don't forget to click the like button, subscribe. See you.